Good morning, students. In our last class, we have started our chapter gravitation. In that, we have discussed a few topics. The first topic that we have discussed was the universal law of gravitation. In that, we have discussed the value of capital G that was called as the universal gravitational constant, whose value is constant whether we go at any of the planet or if we go at any place in the universe, then the value of that capital G is going to be constant there. Also, we have discussed the value of small g, that is the acceleration due to gravity, that the when the body is possessing motion under a free fall, then its motion is said to be the free fall motion, and at that moment of time the acceleration of the body due to the gravity is called as the acceleration due to gravity, and it is denoted by small g, whose value is 9.8 meter per second square, right? Also, we have discussed the relation between the capital G and the small g. Now, I have told you in that video also that the value of small g changes when we go uh, to a certain height from the earth's surface. Also, if we go to the depth from the earth's surface, then also the value of small g changes. जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. अगर हम अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर हैं, हाइटेड प्लेस पर सिचुएटेड हैं, तो वहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और होगी, अर्थ की सरफेस पर कुछ और होगी. अगर हम किसी डेप्थ पर हैं तो वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और होगी. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. Now we are going to derive an expression for the value of small g at some heighted place, right? अगर हम मान लें कि हम किसी heighted place पर हैं, तो वहां पर small g की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए हमको एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना है. This is quite an important derivation. So let us start discussing this derivation. So first of all, students, our topic is variation in value of small g with height. जैसे जैसे आप एक हाइट पर जाते जाओगे या एक सर्टेन हाइट पर होने से स्मॉल जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा, उसके लिए जो डेरिवेशन है वो हमको यहाँ पे समझना है, राइट? तो सबसे पहले हम हमारी अर्थ कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसिडर अवर अर्थ. लेट दिस बी अवर अर्थ. Let O be the center of the earth and capital R be the radius of the earth, right? हमने मान लिया कि हमारी अर्थ की जो रेडियस है, let that be capital R. अर्थ का जो सेंटर है, let that be O. Also let us suppose that mass of the earth will be capital M. हमने मान लिया जो हमारी अर्थ है उसका मास कैपिटल M. अब मैं ये मान लेता हूं कि मैं किसी हाइट पर अर्थ सरफेस से जो हाइट है, लेट दैट हाइट भी कैपिटल एच, मैं इस पॉइंट पर सिचुएटेड हूँ, राइट? हम कोई पॉइंट पी मान लेते हैं. ये जो पॉइंट पी है ये स्मॉल एच हाइट पर डिस्टेंस है, सिचुएटेड है अर्थ सरफेस से. इस पॉइंट पर स्मॉल जी की क्या वैल्यू होगी हमको वो डिराइव करनी है, हमको वो फाइंड आउट करनी है, राइट? हमने मान लिया कि अर्थ की सरफेस पर, दैट इज इस पॉइंट पर जो g है उसकी वैल्यू हमने मान ली स्मॉल g, और हमने ये मान लिया कि इस पॉइंट P पर जो g की वैल्यू होगी, लेट दैट बी g डैश. हम मान लेते हैं कि हम उसको g डैश से डिनोट कर रहे हैं. सो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको इस g डैश के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट? आवर एम इज टू फाइंड आउट द relation between g dash and g, or we have to find out the derivation for this g dash, right? So students, you know that the relation between small g and capital G can be given by this g is equals to capital GM upon में r square. हमने ये चीज पढ़ी है, that is the relation between capital G and small g. So capital G और small g के रिलेशन से आपको पता है small g is equals to capital GM upon में r square, where this capital G is the universal gravitational constant, M is the mass of earth,
and r is the radius of the earth, right? अब अगर मैं इस पॉइंट पर g की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस पॉइंट पर जो g की वैल्यू हो जाएगी that is denoted by g dash and it will be equal to gm. तो कैपिटल G तो वही रहेगा, राइट? कैपिटल G वही इसलिए रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर फिक्स रहती है. ऑल्सो अर्थ का मास भी कांस्टेंट होगा, दैट इज कैपिटल M, जिसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻24 kg. इस केस में क्या होगा, जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगी. अर्थ की सरफेस पे जो रेडियस थी वो कैपिटल R, लेकिन इस पॉइंट P पे जो टोटल हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इट विल बी R प्लस H का होल स्क्वायर, राइट? So this is the thing that we have got for r dash, that is the total for g dash, that is the total radius or the total distance will be r plus h. Now basically I have to find out the relation between these two, और चूंकि मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ. गिव इट इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2. हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे सो दैट वी विल गेट जी डैश अपॉन में g इज इक्वल्स टू gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर एंड होल अपॉन में आ जाएगा हमारे पास gm अपॉन में r स्क्वायर, राइट? इस तरीके से अगर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं तो उनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जो फोर्थ वाला है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई और जो थर्ड वाला है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, राइट? सो दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर दिस g डैश अपॉन में g इज इक्वल्स टू gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर इनटू r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ गया gm. इस g से g कैंसल, m से m कैंसल, फ्रॉम हियर यू विल गेट g डैश अपॉन में g इज इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर, राइट? सो हमने कुछ भी नहीं किया, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया और जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं उनको हमने एज इट इज जस्ट लिखा है, राइट? नाउ मैं एक काम करता हूँ, इस h वाली टर्म में r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और r से डिवाइड कर देता हूँ, राइट? सो वी हैव डन जस्ट नथिंग, हमने सिर्फ h वाली टर्म में r से मल्टीप्लाई कर दिया एज वेल एज r से डिवाइड कर दिया. ऑल्सो हम यहाँ से एक चीज कर सकते हैं कि हम इन दोनों टर्म्स में से r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, राइट? तो जब आपने इन दोनों टर्म्स में से r स्क्वायर को कॉमन ले लिया सो आपके पास बचा है 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, राइट? तो हमने इन दोनों टर्म्स में से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, जो हमारे पास टर्म बच गई इट विल बी 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट g डैश अपॉन में g इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स यू विल गेट फ्रॉम हियर दिस g डैश अपॉन में g इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बिकम 1 प्लस h बाय r की पावर -2, राइट? जब हम उसको ऊपर भेज देंगे तो ये पावर -2 हो जाएगी. और आपको पता है कि जब भी इस तरीके का कोई फ्रैक्शन, जो कोई वैल्यू दी हुई हो और उसकी पावर माइनस में दी हुई हो, तो हम उसको सॉल्व करते हैं बाय बायनोमियल एक्सपांशन, राइट? मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा बायनोमियल एक्सपांशन. सो वी हैव टू सॉल्व दिस टर्म बाय बायनोमियल एक्सपांशन, और जब हम यहाँ पे बायनोमियल एक्सपांशन से इसको सॉल्व करेंगे सो दैट वी विल गेट 1 माइनस 2h बाय r, राइट? सो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू मेमोराइज दिस टर्म, और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा दैट हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट एंड वी हैव गॉट दिस टर्म जस्ट बाय यूजिंग द बायनोमियल एक्सपांशन. यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे दैट बाय बायनोमियल एक्सपांशन वी विल सॉल्व दिस and we will get this term. So from here you will get the relation between this g dash and g, that is equals to g dash is equals to g into 1 minus 2h by r.
right? So this is the relation between the g dash and g, that is the value of g at that heighted place can be given by this expression, that is g dash is equals to g into 1 minus 2h by r. किसी heighted place पर अगर आप situated हैं तो उस place पर जो value होगी that can be given by the expression that is being written over there, right? Now the next topic इसी का just इसी से मिलता जुलता, that यहाँ पे हमने देखा कि एक heighted place पर स्मॉल जी की वैल्यू में क्या वेरिएशंस आएंगे। अब हमको देखना है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि एक सर्टेन डेप्थ पर है, तो उस केस में जो स्मॉल जी है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, राइट? तो अब हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन when the point is situated at certain depth from the earth surface, right? अर्थ की सरफेस से एक सर्टेन डेप्थ पर जब हमारा पॉइंट सिचुएटेड है तो उस पॉइंट पर हम g के लिए एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हमने क्या किया, हमारी अर्थ को हमने कंसिडर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर अवर अर्थ, दिस बी अवर अर्थ। Let the center of the earth be denoted by O and the radius of the earth be denoted by capital R. जो हमारी अर्थ है उसका हमने रेडियस मान ली कैपिटल R, हमारी अर्थ का सेंटर हमने मान लिया O, अर्थ का जो मास है let that mass be denoted by capital M, right? Again the same thing, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी let that be G। अब वहां पे हम एक हाइट पे जा रहे थे, यहाँ पे हम हाइट पे नहीं जाते हुए एक डेप्थ में जाएंगे। तो अगर ये पॉसिबल है, मैंने एक गड्ढा खोदा और हम किसी पर्टिकुलर हाइट या पर्टिकुलर डेप्थ जिसको कि हम h से डिनोट कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर डेप्थ पर आ गए, दैट इज स्मॉल h, राइट? यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने स्मॉल h हाइट तक का एक गड्ढा खोद दिया, सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो कुछ और होगी, एंड हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर जो g की वैल्यू है लेट दैट वैल्यू बी गिवन बाय g डैश, राइट? सो आई होप द फिगर मस्ट बी क्लियर। एक चीज और हम जानते हैं दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। जो डेंसिटी है वो मास अपॉन में वॉल्यूम के बराबर होती है। अगर मैं डेंसिटी को रो से डिनोट करूं, मास को m से डिनोट करूं और वॉल्यूम को v से डिनोट करूं, राइट? सो आई विल गेट द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन एज रो इज इक्वल्स टू m बाय v। ये जो सिंबल है ये रो का सिंबल है, इट्स RHO, रो, राइट? यहां से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं, सो आई विल गेट m इज इक्वल्स टू रो इनटू v, वेयर दिस v इज द वॉल्यूम। और आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप में, और चूंकि हमारी अर्थ स्फेरिकल है शेप में, सो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा दूं, सो आई विल गेट 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट? तो ये उस केस में हमारी अर्थ का मास हो जाएगा जब हम अर्थ की सरफेस पर सिचुएटेड हैं, अर्थ की सरफेस पे हम लोकेटेड हैं, राइट? अगर मैं एक सर्टेन डेप्थ में हूं अर्थ की सरफेस से, तो उस पॉइंट पर g की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं तो m डैश कैन बी गिवन बाय m डैश इज इक्वल्स टू रो। अच्छा, अब अर्थ की जो डेंसिटी है वो तो उतनी ही रहेगी इस केस में भी। क्यों उतनी रहेगी? क्योंकि जब हम एक सर्टेन डेप्थ की बात कर रहे हैं तो हमारी अर्थ का वॉल्यूम कम हुआ, और अर्थ का वॉल्यूम कम होने के साथ साथ उसका मास भी कम हुआ। तो जब मास और वॉल्यूम दोनों कम होगा तो जो डेंसिटी है वो उतनी ही रहेगी जितनी की पहले थी। डेंसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, और सिंस डेंसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं आया, सो आई हैव रिटन इट रो हियर। ऑल्सो आई हैव रिटन 4/3 पाई। अब उस केस में रेडियस जो थी वो r थी, यहाँ पे रेडियस जो है वो चेंज हो जाएगी, दैट दिस विल बी r माइनस h, राइट? ये जो पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा r माइनस h, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ r की जगह पे, रेडियस की जगह पे हमने लिख दिया r माइनस h का क्यूब,
right? So this is the first equation that I have got, this one is the second equation that I have got. So आपके पास m और m dash दो वैल्यूज आई हैं. Also students, you know that by the relation between small g and capital G, that this is small g is equals to gn upon में r square. ये चीज आपको पता है. यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ से, so I will get this g is equals to कैपिटल G इंटू m की जगह पे हमने पुट कर दिया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर केवल एक आर रह जाएगा और वी विल गेट 4/3 g रो पाई आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g दैट वी हैव गॉट. सिमिलरली अगर मैं g डैश की वैल्यू निकालूं, सो g डैश इज इक्वल्स टू g m डैश अपॉन में r माइनस h का होल स्क्वायर. g डैश वो पॉइंट जो कि अर्थ से किसी डेप्थ पर लोकेटेड है और अर्थ से जब हम डेप्थ पे आएंगे तो वहां पे जो रेडियस है वो कम हो जाएगी और जो रेडियस है वो कितनी कम हुई, इट विल बिकम r माइनस h. यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, सो वी विल गेट m डैश की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, सो मुझे मिल जाएगा 4/3 पाई r माइनस h का क्यूब अपॉन में r माइनस h का होल स्क्वायर. r माइनस h के क्यूब से r माइनस h का होल स्क्वायर कैंसल और व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, वी विल गेट दिस g डैश इज इक्वल्स टू 4/3 रो g पाई r minus h. So this is the value of g dash that we have got from here. Now the same thing जो हमने पहले की थी, give it equation number 3, this one equation number 4. हमको बेसिकली g dash और g के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया, राइट? So on dividing equation 4 by equation 3, we will get the relation between g dash and g, which can be given by g dash upon में g is equals to, you will get 4/3 pi rho g r minus h upon में 4/3 pi rho g r. सारी टर्म्स जो कैंसिल हो रही हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया. द सिमिलर टर्म्स हैव गॉट कैंसल्ड और यहां से आपके पास आ जाएगा g डैश अपॉन में g इज इक्वल्स टू r माइनस h अपॉन में r, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r अपॉन में r माइनस h अपॉन में r, और यू विल गेट g डैश अपॉन में g इज इक्वल्स टू r से r कैंसल, दैट इज 1 माइनस h बाय r. So this is basically the relation between g dash and g at the depth on the earth surface. अगर हम अर्थ की सरफेस से गड्ढा खोदकर एक पॉइंट पे आए तो वहां पर g dash की जो वैल्यू होगी that can be given by this expression, or you can write it also as g dash is equals to g minus 1 by h by r. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? सो दोनों केसेस में केवल डिफरेंस यही है कि वहां पर जो g डैश की वैल्यू हो रही थी वो ट्वाइस ऑफ h के अकॉर्डिंग अफेक्ट हो रही थी, हाइट के जस्ट डबल जो है वो अफेक्ट हो रही थी, और यहाँ पे हाइट के जस्ट प्रोपोर्शनल ही वो अफेक्ट होगी. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल वेरिएशन बिटवीन दीज टू थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर. नाउ we should solve some numericals that are based on these two topics, as the numericals associated with these two topics are important. Okay, so one question is being given to you here. I have written only the important things. I have not written the whole question. I am just explaining it to you here. एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की सरफेस पर सिचुएटेड है, आपको उसका वेट गिवन है, राइट? एक ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ की सरफेस पे सिचुएटेड, हमको उसका वेट गिवन है 81 न्यूटन. ऑल्सो आपको ये गिवन है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को उठाकर अर्थ की रेडियस के जस्ट हाफ हाइट पर सिचुएट कर दिया. मतलब कि ये हमारी अर्थ की रेडियस, हमारी अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है. हमने उस ऑब्जेक्ट को r/2 हाइट पर लोकेट कर दिया, मतलब यहाँ किसी पॉइंट पे हमने उसको रखा है अराउंड
6400 इज अवर अर्थ की रेडियस, सो हमने उसको r/2 दैट इज 3200 किलोमीटर की हाइट पे हमने उसको रखा है। उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा ये आपको निकालना है, राइट। तो सबसे पहले W डैश के लिए मुझे उस ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए, एज वेल एज उस पॉइंट पर G डैश की वैल्यू क्या होगी मुझे ये पता होनी चाहिए। अगर मैं ये दोनों चीजें निकाल लेता हूं तो आई विल श्योरली गेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट हाइटेड प्लेस, राइट। सो समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी नो दैट स्टूडेंट्स W इज इक्वल्स टू mg, राइट। हमको पता है बाय वी नो दैट W इज इक्वल्स टू mg। तो अगर मेरे पास वेट की वैल्यू गिवन है तो मैं इजीली मास की वैल्यू निकाल सकता हूं। मास हमको निकालना है, स्मॉल जी हम यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए 10 ले लेते हैं, और वेट जो है दैट इज 81, राइट। यहां से आपने सॉल्व किया सो आपके पास मास की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 81/10 kg। इसको अभी हम एज इट इज रखते हैं, राइट। हमने इसमें अभी कुछ भी नहीं करेंगे, हमने इसको जस्ट एज इट इज पुट कर दिया, दैट इज 81/10 kg। नाउ मुझे अब चाहिए G डैश की वैल्यू। सो सबसे पहले मुझे पता है G इज इक्वल्स टू GM अपॉन में R², और जब हम एक हाइट पर जाते हैं तो उस हाइट पर G डैश की वैल्यू हो जाती है R प्लस H का होल स्क्वायर, राइट। यहां से अगर मैं H की वैल्यू पुट कर देता हूं सो आई विल गेट H इज इक्वल्स टू R/2। सो हमने यहाँ पे जस्ट H की जो वैल्यू है वो पुट कर दी, दैट इज R/2 आई हैव रिटन एज इट इज। G डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा GM अपॉन में, इसको आपने सॉल्व कर लिया सो यू विल गेट दिस विल बी 2R प्लस R/2 का होल स्क्वायर, हमने 2 का एलसीएम ले लिया। वी विल गेट GM अपॉन में दिस विल बी 3R का स्क्वायर, इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 3R का स्क्वायर वुड बी 9R स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर इज 4, और जब ये 4 ऊपर चला गया तो इट विल बिकम 4/9 इंटू GM अपॉन में R², और आपके पास रिलेशन आ जाएगा G डैश इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू GM अपॉन में R²। GM अपॉन में R² आपको पता है किसके बराबर होता है, G के बराबर, और G की वैल्यू आपको पता है दैट इज 10, और यू विल गेट 40/9। सो आपके पास G डैश की वैल्यू आ गई 40/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस G इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ऐसा यूनिट हमने लगा दी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास G डैश की वैल्यू है, ऑल्सो आपके पास M की वैल्यू है। जब आप दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे सो यू विल गेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट सर्टेन हाइटेड प्लेस। मास की जगह हमने लिख दिया 81/10, G डैश की जगह पे हमने लिख दिया 40/9, इट विल बी 9 9 ज़ा 81, 0 से 0 कैंसल, 9 चौक 36 न्यूटन। So the weight at that heighted place is given by 36 न्यूटन। एक चीज और हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ की सरफेस पे जो वेट था वो 81 न्यूटन था, और जब हम एक सर्टेन हाइट पर गए तो जो वेट है वो कम हुआ है। मतलब यहाँ से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है कि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो स्मॉल g की वैल्यू है वो कम होती जाती है, राइट। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइट। यहाँ से एक और क्वेश्चन, अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करें, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट द सेंटर ऑफ अर्थ। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी अर्थ के सेंटर पे, so that you have to find out. So basically अर्थ के सेंटर पे स्मॉल g की वैल्यू जो होती है हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, अभी उसके लिए अभी हमने पढ़ा 1 - h/r। अर्थ की डेप्थ पर जो एक्सप्रेशन होगा दैट कैन बी गिवन बाय G डैश इज इक्वल्स टू G इंटू 1 - h/r। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि हमको अर्थ की सेंटर पे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब आप अर्थ के सेंटर पर आए दैट इज h इज इक्वल्स टू r, हमने अर्थ की रेडियस के बराबर गड्ढा खोदा, दैट इज h की वैल्यू r हो गई।
और you will get r से r cancel, 1 minus 1 is 0, और you can say that अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी, 0, राइट। मतलब अर्थ के सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 0 होती है। दिस इज द थिंग दैट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, राइट। So that's all for today's class, students. You should practice some more numericals based on these topics by your own. The further topics we are going to study in the next class. Thank you.